الحمد لله الذي أنار بالفقه دروب الصالحين إلى مرضات رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم وبارك على من قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. واجب الاحترام علماء کرام، بزرگ حضرات، ملت کے نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشی خواتین، آپ سبھی کو میرا اسلامیہ تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع توہم پرستی کی حقیقت۔ معزز سامعین، ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے، ہم سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی واجب ہے۔ اس معبود حقیقی کے علاوہ کسی کی بندگی جائز نہیں۔ ہماری ساری زندگی اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزرے، یہ ہم سب کا مقصد ہونا چاہیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اسی کا نام توحید ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی بندگی کیسے کی جائے، اس کا سلیقہ کیا ہے، آداب کیا ہیں، یہ ساری تفاصیل بتانے اور سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اسی کو ہم رسالت کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت کے اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کو ماننا، ان کے اسوہ کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہی اسلام ہے۔ اور اسلام انسان کا اصلی مذہب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ اسلام کی قابلیت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یا تو یہودی بنا لیتے ہیں، یا نصرانی بنا لیتے ہیں، یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پیدائشی ہماری فطرت تو سلیم تھی ہی، جیسے ہم بڑے ہوتے گئے والدین کے عقائد اور تقالید کا بھی ہم پر اثر رہا، اور جو ماحولیاتی رسم و رواج ہوتے ہیں اس کا بھی ہم پر اثر ہوتا رہا۔ اسی قبیل کی چیز ہے توہم پرستی۔ معزز سامعین، اسلام ایک جامع مذہب ہے جس کی تعلیمات اپنی جگہ ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو وقتی جذبات اور عارضی اور ظاہری کاموں کے بجائے دائمی اور حقیقی چیزوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، بے مقصد زندگی گزارنے اور بے لگام ہو کر جینے سے روکتا ہے، اپنی خواہشات اور تمناؤں کو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی میں مٹا کر ابدی سعادت اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہونے کا سبق اسلام ہمیں دیتا ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے۔ اس دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، جتنی بھی رعنائیاں ہیں، یہ ساری کی ساری ایک نہ ایک دن ماند پڑنے والی ہیں۔ معزز سامعین، توہم پرستی کیا ہے؟ جس چیز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کی حقیقت کو، اس کے وجود کو ماننے کا نام توہم پرستی ہے۔ یا کسی چیز میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہے، لیکن اس چیز میں تاثیر کو ماننا، تاثیر کا اعتقاد رکھنا، یہی توہم پرستی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہالت کی وجہ سے غیر عقلی عقائد پر یقین رکھنا، جیسا کہ عامت الناس میں یہ معروف ہے کہ طرح طرح کے پتھروں میں طرح طرح کے اثرات ہوتے ہیں، ستاروں میں اثرات ہوتے ہیں۔ یہ جو اعتقاد ہوتا ہے یہ باطل بھی ہوتا ہے اور یہ توہم پرستی بھی ہوتی ہے۔ توہم پرستی کی وجوہات اگر ہم انسانی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دو ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی وجہ علم کی کمی اور دین کے احکامات سے ناواقفیت۔
दूसरी जो वजह हमें नजर आती है वो ये कि एक तवील जमाने तक मुसलमानों का गैर कौमों के साथ रहना बसना, क्योंकि तहव्वुम परस्ती गैर कौमों में एक आम सी चीज है। अगर देखा जाए मौजूदा साइंसी दौर में जहां हर वाक़ये को और हर नजरिए को दलील और हकीकत की रोशनी में जो है परखा जाता है, ऐसे तरक्की याफ्ता दौर में भी वो ममालिक जो मादी एतबार से तरक्की याफ्ता माने जाते हैं, उन ममालिक में भी ये तवहुम परस्ती बिल्कुल आम हमें नजर आती है। मिसाल के तौर पर चाइना में आठ का जो हंदसा है उसको मुबारक समझते हैं और 4 के हंदसे को मनहूस समझते हैं। स्पेन में मंगल के दिन महीने की 13 तारीख अगर आती है तो कौमी तौर पर उसको बदकिस्मती की अलामत समझा जाता है। आयरलैंड में दुल्हने अपने जेवरात में या अपने मलबूसात में छोटी सी घंटी जो है वो बांधती हैं और उसको खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है। रूस में खाली बाल्टी को ले जाने को बुरा शगुन जाना जाता है। फिनलैंड में लोग यकीन रखते हैं कि अगर मकड़ी को मार दिया जाए तो अगले दिन बारिश होगी। पुर्तगाल में लोग समझते हैं कि उल्टा चलने से बुराई हमारा रास्ता देख लेती है। मसर में खाली कैंची चलाने को बुरा समझा जाता है क्योंकि इससे हवा में मौजूद बदरूहें कट जाती हैं, जिसके बायस उनको गुस्सा आता है। स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड के लोग शादी के बाद घर के बाहर सनोबर का दरख्त लगाते हैं कि ये दरख्त उनके इज़्दिवाजी ताल्लुकात में मजबूती लाएगा। बरतानियों में अगर आप देखें, चूंटियों की आमद बुरे मौसम के तौर पर लिया जाता है और चूंटियों का एक कतार में चलने को वो बारिश होने की अलामत समझते हैं। और इसी तरीके से मगरिब में अगर आप लेते हैं, सफ़ेद मुर्गी उनके पास जो है अच्छा शगुन है और वही अगर काली मुर्गी है तो वो उनके यहाँ बुरा शगुन है। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामईन, हिंदो पाक में अगर आप लेते हैं, शाम के वक्त झाड़ू लगाने से गुरेज करना कि ऐसा करने से दौलत कम हो जाती है। और इसी तरीके से मर्द की दाएं तरफ की आंख अगर फटकने लगती है या औरत की बाएं तरफ की आंख जो है फटकती है तो दौलत की निशानी जो है इसको समझा जाता है। और इसी तरीके से चारपाई पर बैठकर पांव लटकाकर नीचे लटकाकर हिलाने को दौलत के चला जाने से ताबीर किया जाता है। और इस तरीके के कई सारे तवहुमात हैं जो खुद हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे ममालिक में गैरों में भी उतने ही पाए जाते हैं और उतने ही जो है मुसलमानों भी हमें नजर आते हैं। चुनांचे शायर ने कहा, हमको भरम ने बहरे तवहुम बना दिया, दरिया समझ के कूद पड़े हम शराब में। तवहुम परस्ती आम होने में मीडिया का भी अपना किरदार है, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है, प्रिंटिंग मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इंटरनेट का ज़माना है, हर आदमी के हाथ में जो है मोबाइल है, जिसमें कई सारे गेम्स ऐसे बनाए जाते हैं और कई सारे ऐसे कार्टून्स बनाए जाते हैं और कई सारी ऐसी कहानियां जो है उसमें बनाई जाती हैं, जिनको सुनकर देखकर जो बेहकीकत चीज़ें होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, उन चीज़ों में आदमी एतिकाद करना शुरू कर देता है।
चुनाचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, आज अगर आप रोजनामा देखेंगे तो उसमें सितारों के ताल्लुक से बातें होती हैं, कुंडलियों के ताल्लुक से बातें होती हैं, और इसी तरीके से कि आज तुम्हारा दिन बुरा गुजरेगा या अच्छा गुजरेगा इसका भी तज़किरा होता है। और इन सारी चीज़ों के पढ़ने वाले लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनमें हमारे मुसलमानों की तादाद भी बड़ी है। जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ों को मालूम करने के लिए नुजूमी के पास जाने से मना फरमाया है, और सख्त वईद जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। और ये वो तवहुमात हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अकायद आपको जो फलसफे पर मबनी अकायद आपको मालूम होंगे। चुनांचे मुआज़्ज़ज़ सामईन, अल्लामा इकबाल ने कहा था, सजदा खालिक को भी इब्लीस से याराना भी हश्र में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। हमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात में यकीन रखना चाहिए। अब इन तवहुमात से हम कैसे नजात पाएं, इसका शरई हुक्म क्या है। मुआज़्ज़ज़ सामईन, दीन इस्लाम में तवहुमात को सख्ती से मना किया गया है। इस्लाम से कबल अरबों में भी इस किस्म की तवहुम परस्ती पाई जाती थी। अरब के लोग बेटी की पैदाइश को वो बुरा शगुन मानते थे। चुनांचे कुरान इसी का तज़किरा करते हुए फरमाता है, इदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। और इसी तरीके से अरब के लोग घर में दरवाजे से दाखिल होने के बजाय पिछवाड़े की तरफ से दाखिल होने को वह अच्छा शगुन जानते थे। और इसी ज़िम्न में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्त जिगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होती है तो लोगों में कुछ चेबीगुइयाँ होने लगती हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए फरमाते हैं, इन्ना शम्स वल क़मरा आयतान मिन आयातिल्लाह ला यख्सिफानी लिमौति अहदिन वला लिहयातिही फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिका फ़दउल्लाह वकब्बिरू वसल्लू वसद्दक़ू वतसद्दक़ू। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण किसी की मौत पर या किसी की पैदाइश पर जो है ये वजूद में नहीं आते। अगर तुम सूरज ग्रहण देखो, चांद ग्रहण देखो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किबरियाई बयान करो और नमाज पढ़ो और सदका व खैरात दो। तो मुआज़्ज़ज़ सामईन, गौर करेंगे तो हमें मालूम होगा तवहुमात पर यकीन करना दर हकीकत तकदीर पर यकीन का रद है। कोई भी दिन, कोई भी पत्थर, कोई भी बशर, कोई भी चरिंद या परिंद या सितारे, सूरज, चांद, कोई भी ले लें आप, इनमें से कोई भी चीज नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। तुझे जो भलाई या फायदा पहुंचे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से है, और तुझे जो बुराई या नुकसान पहुंचे वो तेरे नफ्स की तरफ से है, यानी तेरे बुरे आमाल के सबब से। अब मुआज़्ज़ज़ सामईन, इस माह में, माह सफ़र में राइज कुछ खुराफात को, तवहुमात को भी हम सुनते आगे बढ़ेंगे। मुआज़्ज़ज़ सामईन, माह सफ़र और खुसूसन इस माह की इब्तिदाई 13 दिन को 13 तेजी के नाम से जाना जाता है, और इन 13 दिनों को मनहूस समझा जाता है। और इन 13 दिनों में
सैकड़ों किस्म के आफात और बलाएं जो है नाजिल होती हैं, इसका एतिकाद रखा जाता है। बल्कि इस उनके तवहम को साबित करने के लिए हदीसों को घड़कर भी सुनाया जाता है। और इसी माह में अगर आप ले गए, जो शुरू के 13 दिन हैं, किसी से शादी का रिश्ता तय नहीं किया जाता, शादी नहीं की जाती, और जिनकी शादी हो चुकी होती है उन शौहर और बीवी को जुदा रखा जाता है और एतिकाद रखा जाता है अगर ये मिलकर रहेंगे तो इनकी इज़्दिवाजी जो जिंदगी है वो खराब हो सकती है। और इसी तरीके से इस महीने के जो 13 दिन शुरू के हैं उसमें किसी जगह का सफर नहीं किया जाता या दुकान मकान की इफ्तिताह जो है इन 13 दिनों में नहीं की जाती। इसकी वजह है इन 13 दिनों को वो मनहूस समझते हैं और इनमें अगर कोई खैर का काम करेंगे तो उसमें बरकत नहीं होगी, ये इनका एतिकाद होता है। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, सफ़र के महीने में आखिरी चहारशंबा को लोग अपने अहले खाना के साथ सैर व तफरीह के लिए जाते हैं और उनका नजरिया यह है, उनका कहना यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी दिन जो है शिफायाबी मिली थी, जिसकी खुशी ये इस शक्ल में मना रहे हैं। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, सफ़र के महीने में आखिरी चहारशंबा को हिंदुस्तान में याद रखें कि खुसूसी तौर पर नफली रोज़ा रखा जाता है और शाम को कचौरी या हलवा पकाकर खाया जाता है। अवाम को इस अवाम में तकसीम भी किया जाता है और इस रोज़े को कचौरी रोज़ा का नाम भी दिया जाता है। और इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी आखिरी चहारशंबे को एक नमाज भी अदा की जाती है जिसको जो है चाश्त के वक्त में अदा करने को कहा जाता है। और कहते हैं कि सूरतुल फातिहा के बाद कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क के बाद की जो दुआएं हैं वो तिलावत करनी चाहिए। दूसरी रकात में सूरतुल फातिहा के बाद कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान, ये इसकी जो दुआएं हैं ये तिलावत करनी चाहिए और सलाम के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना चाहिए। इसी के पस मंजर में शायर ने कहा था, हिंद में हिकमत दीन कोई कहाँ से सीखे, न कहीं लज्जत किरदार न अफकार अमीक। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी है कि हम खुद भी इस किस्म के तवहुमात से और मुनकरात से बचें और हत्तल इम्कान जितनी हमारी ताकत हो सकती है दूसरों को भी इससे बचाने की कोशिश करें। अब हम ये जो बदशगुनी है उसके इलाज के ताल्लुक से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, बदफाली और बदशगुनी की भी कुछ हकीकत नहीं है, ना उल्लू का बोलना कोई बुरा असर रखता है और ना ही माह सफ़र मनहूस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बदफाली शिरक है, बदशगुनी शिरक है और हम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसे बतकाज़ाए बशरियत ऐसा वहम ना होता हो मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवक्कुल की वजह से इसको हमसे दूर फरमा देते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने किसी काम से बदफाली की बिना पर रुका उसने शिर्क किया। सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दरियाफ्त किया इसका कफ़ारा क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका कफ़ारा ये दुआ है और वह दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुक वला तैरा इल्ला तैरुक वला इलाहा गैरुक, यानी ऐ अल्लाह तेरी भलाई के अलावा कोई भलाई नहीं
اور تیرے شگن کے علاوہ کوئی شگن نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی، حسد اور بدگمانی ان تینوں چیزوں کے تعلق سے فرمایا کہ میری امت میں پائی جائیں گی، اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز کے تعلق سے تمہارے اندر بدشگونی ہو تو تم وہ کام جو ہے کر گزرو۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک۔ معزز سامعین، مختصر انداز میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں یہ بتاتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جو بیمار شخص ہوتا ہے اس کے قریب بھی لوگ پھٹکتے نہیں، بلکہ وارننگ دیتے ہیں بچوں کو کہ دادی کے پاس مت جانا، دادا کے پاس مت جانا، فلاں کے پاس مت جانا۔ معزز سامعین، یہ توہم پرستی کی وجہ سے جو مریض، جو بیمار ہماری محبت کا، ہماری شفقت کا، ہماری ہمدردی کا محتاج ہے، ہم اسی کے ساتھ یہ سخت رویہ اپنا رہے ہیں، اور اسی توہم پرستی کی وجہ سے اس بڑے اجر سے ہم محروم ہو رہے ہیں جس کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اگر ہم کسی بیمار کو صبح جا کر اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں، شام تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور شام میں جا کر ہم اگر اس کی بیمار پرسی کرتے ہیں تو صبح تک جو ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک ہم بیمار کے پاس بیٹھ کر خیر خیریت دریافت کر رہے ہوتے ہیں، جنت کے تازے پھل ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان ساری جو خوش نصیبیاں ہیں، یہ سارے جو فضائل ہیں، ان فضائل سے ہم اس لیے محروم ہو رہے ہیں کہ ہم نے توہم پرستی کو جو ہے پال رکھا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، ہمارے لیے دنیا میں سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ چنانچہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، اور اس قسم کے جو غلط رسم و رواج ہیں ان کو خود ہم پورے طریقے سے چھوڑ دیں، اور اگر ہمارے ساتھیوں میں ہیں، ہمارے معاشرے خاندان میں ہیں تو اس کو دور کرنے کی پوری کوشش ہم کریں۔ آخر میں اس شعر سے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے ہماری، آخری وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ ہمیں پھر سے دعوت توحید کو عام کرنا ہے، کل جہاں میں پھر سے زندہ اسلام کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی باتیں کہیں اور سنی گئی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی اور سنی گئی ہیں اس میں حق اور سچائی ہے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور اگر کچھ غلط اور باطل ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے، جس سے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان توہم پرستی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیراً، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔